किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is e-NAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. रिसाले भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम। और जो हमारा जो कार्यक्रम किसान वाणी है सुन रहे हैं भाई, किसान भाई जो है ना रेडियो लेके अभी जो है ना लगा लिया ना रेडियो। हाँ। और उन भाई है ना भी राम राम हमारी। बिल्कुल भाई। और कृष्ण भाई, हाँ, आज कार्यक्रम में क्या जिक्र करोगे?
देखिए विनोद भाई, कार्यक्रम में एक तो जिस तरह हम ये भी बता रहे हैं किसान भाई है ना भाई, जिस जो भी किसान भाई फलदार पौधे लगा के रखे हैं और उनकी जो कटनी छटनी की तो बात आप करते ही रहे हैं जी। लेकिन उनकी जो कटनी छटनी है उसमें देखभाल किस तरह करनी है, कौन सी टाणी काटनी है, तो उन सारी बातों का ध्यान भी रखना है। जब फल आ जाएंगे उनकी किस तरह पैकिंग करनी है, ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब किसान भाई इन सब चीज़ों ना ध्यान रख के और जो है ना जो मंडी में ले जाएगा, देखो बढ़िया दाम मिलेंगे। बिल्कुल भाई। और विनोद भाई जो आप कह रहे हैं कि भाई कोई बातचीत भी सुनवा दे करो, तो आज इसी विषय पर बातचीत भी सुनवा देंगे। बिल्कुल साले भाई, आपने जो फला का जिक्र तो छेड़ लिया कि तुड़ाई छटाई और पैकिंग किस तरह करनी है, और मेरे भी ध्यान आ गया कि मैंने इस बारे में जो है डॉक्टर रूपाक्षी तो बात करी थी जी, तो क्यों ना किसान भाइयों तो उसके बारे में जिक्र करो और बातचीत सुनाओ। किसान भाइयों, बागवानी फसलों की संभाल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो किसान भाई जो है फलों के बाग जिन्होंने लगा रखे हैं, तो फलों की तुड़ाई है, छटाई है या जो उनकी पैकिंग है, उसमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर इसमें कुछ अभाव हो गया तो जो कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाए। और इसी विषय में जानकारी लेने के लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रूपाक्षी जी से। आप खंड उद्यान अधिकारी हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार बोलना चाहूंगी और बताऊंगी कि आज की चर्चा का जो विषय रहेगा प्रूनिंग रहेगा। प्रूनिंग को हम कटाई छटाई भी कहते हैं। जी मैम। तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रूनिंग होती क्या है। जी। तो जो अवांछित शाखाएं हैं, अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि या फिर पौधे की जो मृत, सूखी और रोगाग्रस्त लकड़ी होती है, उसे हटाने को प्रूनिंग कहा जाता है। इसे हम आम भाषा में कटाई छटाई भी कहते हैं। ये वानस्पतिक विकास यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ और या पौधे की बढ़वार कह सकते हैं जिसको, एवं उत्पादन यानी प्रोडक्शन के बीच में संतुलन को संदर्भित करता है। जो फलदार पौधे होते हैं उसमें काट छांट का बहुत ही विशेष महत्व होता है, खास करके पतझड़ी फल वृक्षों में। पतझड़ी का मतलब है कि जो फल वृक्ष अपने पत्ते झाड़ देते हैं पूरी तरह से। जी डॉक्टर साहब। तो जो प्रूनिंग है यह पेड़ पर फलों के भार को समायोजित करने के लिए भी किया जाता है। और अगर हम समय पर कटाई छटाई नहीं करते तो जो पौधे हैं वो जंगली पौधों की तरह बढ़ने लगते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब जो चारों तरफ फैलना शुरू करे पौधा, तो उससे बचने के लिए हमें उसकी जो अलग शाखाएं निकल गई हैं बाहर, तो उनको काटना छाटना है, और या जो सूख गई है या जिसमें कोई रोग आ गया है तो उसको काटना हमें जरूरी है। जी बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो है हम ये जो छटाई करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो इसमें जो कटाई छटाई का जो समय है वो क्या रहेगा और उसमें हमें क्या क्या सावधानी रखने की जरूरत है? छटाई का जो समय है वो पौधे के प्रकार और जो फूल आने का समय होता है उस पौधे पे, उस पे निर्भर करता है जी। जैसे कि हम देखते हैं जो आड़ू है या फिर नाशपाती है, इनमें हम सर्दी के समय में कटाई छटाई करते हैं, जबकि बेर में हम गर्मी के समय में कटाई छटाई करते हैं जी। परंतु जो रोगाग्रस्त, मृत या फिर सूखी लकड़ी जैसी जो दिक्कतें होती हैं उनको हम किसी भी समय पे हटा सकते हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखें कि फल या फूल लगने के समय पे छटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जी। इसके अलावा जैसा कि आपने सावधानियों के बारे में पूछा, तो फल वृक्षों की जो काट छांट है उन्हें केवल तेज धार वाली सिकेटियर या आरी से करना चाहिए जी। जो काट छांट है वो सही समय पर ही करनी चाहिए, किसी और समय पर नहीं करनी चाहिए जी डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी शाखा को हमें पूरी तरह से हटाना है तो उसे उसके बेस से यानी आधार से काट देना चाहिए, कोई स्टब नहीं छोड़ना चाहिए। जो लकड़ी का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है वो नहीं छोड़ना चाहिए जी डॉक्टर। और फूल आने का जो मौसम है उससे पहले हमें काट छांट पूरी कर लेनी चाहिए। कटाई छटाई के समय पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो छाल होती है पौधे की उस पर चोट ना लगे और जो शाखाएं हैं उनका छिलका ना उतरे। यानी कि वो जो आपने कहा कि भाई धार जो है उससे ही उसको काटे। हाँ बिल्कुल, इससे एकदम कट जाए वो बिल्कुल। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आर पार एक दूसरे में चढ़ी हुई शाखाएं होती हैं उनको काटें जरूर, और जो जमीन के संपर्क में हैं उन्हें जरूर काटें क्योंकि ये रोग का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। इनकी मिट्टी के माध्यम से, जमीन के माध्यम से रोग जो है वो टहनियों के साथ ऊपर चला जाता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मान लो अब इसमें जो हमने फलों की जो है हम तुड़ाई करते हैं और तुड़ाई करने के बाद जो छटाई होती है फलों की भी, तो वो मशीनों के माध्यम से करी जा रही है कि इसमें मजदूर है जो इसकी छटाई करते हैं जो फलों की है? देखिए आमतौर पर जो है अभी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं, अभी मजदूर ही कर रहे हैं इस कटाई छटाई को,
और मशीनों में भी हमें मशीनरी भी ऐसी चाहिए जो कि जो बाग है, बाग के बीच में जो रास्ता है उसमें भी जा सके, और उसके साथ साथ कटाई छटाई भी। आप मशीन को ये नहीं बता सकते कि आपको कौन सी शाखा काटनी है, परंतु एक मजदूर को पता है कि उसे कौन सी शाखा काटनी है। यदि फलदार शाखा काट दी गई तो किसान को लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, ये जो हम फलों की जो तुड़ाई कर लेते हैं, तो तुड़ाई के बाद भी जो हम फलों को छांटते हैं कि भी इसमें रोगी फल हैं उनको अलग करना, या खराब कटे फटे फल हैं उनको भी अलग करना, या जो कच्चे फल रहेंगे उनको अलग करना, और इस काम को फिर किस तरह से किया जाता है? इस काम को करने के कई तरीके होते हैं। आज किसान भाई जो हैं वो खुद भी कर सकते हैं, जो एक उनको देखने का माध्यम होता है कि आप फल को देख के बता सकते हैं कि इसका साइज बड़ा है, छोटा है, अच्छी क्वालिटी है, नहीं है। इसके साथ साथ मशीनें भी आ गई हैं, पूरा प्लांट लग जाता है जिसे हम सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन कहते हैं। उसमें भी साइज जो है मशीन के हिसाब से बराबर साइज वाले एक ही उसमें जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ उसमें जो है लोग भी एम्प्लॉयमेंट कर दी जाती है, जो कि जो खराब होते हैं या रोगग्रस्त फल होते हैं उन्हें हटा देते हैं वहां से। जी डॉक्टर साहब। हाँ, जो जैसे हम बाजार में जाते हैं फल लेने के लिए, तो उसमें होते हैं कि क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये इनकी अलग अलग तरह की पैकिंग करी जाती है कि भाई ये इसमें सबसे अच्छे वाले रखे गए हैं, या साइज के हिसाब से होते हैं, कहीं पे संतरा बड़ा है या छोटे हैं, तो इस तरह से हम अलग अलग साइज उनका देखते हैं। तो ये छटाई के माध्यम से ही होता है सारा काम। जो फल को अलग अलग ग्रेड्स में बांटना, अलग अलग साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, उसे हम ग्रेडिंग कहते हैं। वो डिपेंड करता है, हर फल की जो है ग्रेड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग आधार पे अलग अलग ग्रेड्स बांटे गए हैं। जो आप मार्केट में देखते हो ग्रेड 1 या क्लास 1, वो उस आधार पे बांटे जाते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, ये जो फिर जो पैकेजिंग की जाती है, तो पैकेजिंग हम क्यों करते हैं, इसका क्या लाभ है पैकेजिंग करने का? देखिए, आप जानते हैं हमारा देश जो है विविधताओं का देश है जी। तो जलवायु में विविधता बहुत ज्यादा है। फल और सब्जी के उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। जी डॉक्टर। लेकिन दूसरे स्थान पर होने के बावजूद भी हमारे किसान भाइयों को इन फल और सब्जियों के जो उचित दाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। जी। इसके पीछे बहुत कारण है, परंतु पैकेजिंग जो है वो एक मुख्य कारण है। जी। और पैकेजिंग जो है इन उत्पादों को यातायात और भंडारण के समय उचित अवस्था में रखती है और उपभोक्ता को एक अच्छी अवस्था में फल जो है उपलब्ध कराते हैं, इसलिए पैकेजिंग आवश्यक है। जी। और डॉक्टर साहब, जब हम पैकेजिंग कर रहे हैं तो किन किन बातों का खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए? पैकेजिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फल और सब्जी है ना, हर किसी की पैकेजिंग की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो अलग अलग है। आपने देखा होगा मार्केट में जो स्ट्रॉबेरी है वो पुनेट्स में आते हैं, जो बॉक्स होते हैं उसे हम पुनेट्स कहते हैं, लेकिन इस पुनेट में आपको कोई और फ्रूट नहीं मिलेगा। हाँ जी। इसी तरह से आपने एप्पल देखा होगा, सेब देखा होगा, उसके ऊपर एक गुलाबी रंग की नेट चढ़ी होती है। जी जी। वो सब फ्रूट्स पे नहीं चढ़ी होती है। हाँ। CSB बॉक्सेस देखे होंगे, उसमें ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं। तो इसी तरह से हर फल और सब्जी की जो आवश्यकता है वो अलग अलग प्रकार की होती है पैकेजिंग की। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखें कि आप, ऐसा नहीं है कि जो पुनेट है उसमें आप स्ट्रॉबेरी की जगह एप्पल डाल रहे हैं, तो उन आवश्यकताओं का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि जो पैकेजिंग है वो जो आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसकी क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम इसको में लो क्वालिटी के या फिर कच्चे फ्रूट डाल दें और वो पक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अच्छी क्वालिटी के फल को ही पैक करना चाहिए। यदि हम कोई बड़ी पैकिंग कर रहे हैं, जैसे जिसमें एक से ज्यादा फल है, तो उसमें जो सड़े गले या फिर क्षतिग्रस्त उत्पाद हैं उन्हें ना डालें, क्योंकि ये संक्रमण का स्रोत बन जाते हैं, जिससे क्या होता है उस पैकिंग में सभी फल खराब हो जाएंगे। सभी फल को खराब कर देगा वो। हाँ, तो आप एक फ्रूट को एक पीस को बचा रहे थे तो आपका पूरा पैकेट खराब हो गया, तो बाजार में आपको वो रेट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। जी। इनकी डॉक्टर साहब, जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि जो यातायात के माध्यम से जो एक जगह से दूसरी जगह फलों को पहुंचा रहे हैं या सब्जियों को पहुंचा रहे हैं, तो उनको नुकसान ना हो किसी तरह का। जी बिल्कुल, मुख्य कारण हम इसे मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है आप देखें, जो पैकेजिंग है वो उपभोक्ता के लिए एक प्रोडक्ट का पहला परिचय होती है, एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन का काम करती है। आप कोई किसान भाई बाजार में जाके हर वक्त ये नहीं बता सकते कि ये उत्पाद अच्छा है। अगर आप पैकिंग करते हैं उससे उपभोक्ता की अपने आप एक रुचि बनती है, अगर पैकिंग अच्छी है तो। जी डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ आप उस फल का या सब्जी का उसके ऊपर विवरण दे सकते हैं,
जैसे किस फ्रूट में विटामिन ए है, किस में विटामिन सी है, अगर आप जी। उसके ऊपर लिखते हैं तो हाँ और जी। ज्यादा रुचि बनती है उसकी। डॉक्टर साहब एक चीज और है, जैसे जब पैकिंग की जाती है तो उनको रोग मुक्त करके पैकिंग की जाती है या उनको धो के की जाती है या कोई तापमान पे नियंत्रित करके रखी जाती है, मोम लगा के, कहीं इस तरह की सुनने में आती है कि भी मोम लगा के लगाया जाता है कईयों पे, कईयों में तापमान को नियंत्रित करके उसके बाद पैकिंग की जाती है, या फिर कईयों को रोग मुक्त करके उसमें कुछ दवाइयां लगा के या उनको तब पैक किया जाता है, ऐसा भी कुछ होता है डॉक्टर साहब? इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपने मोम की बात की जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में वैक्सिंग कहते हैं। जी। उसमें एक पतली सी जो लेयर है वो चढ़ाई जाती है वैक्स की फ्रूट पे, लेकिन आप उसे ये मत समझें कि ये जो मोमबत्ती वाला मोम है ये मोम जी। नहीं होता है। हाँ वो जी। एडिबल वैक्स होता है जिसे हम खा सकते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करता है। उसकी एक बहुत ही पतली सी लेयर जो है उस फ्रूट पे चढ़ाई जाती है। जी। उसका कारण ये है कि जो फल है वो तुड़ाई के उपरांत भी जो है सांस लेते हैं। हाँ जी। तो उस अगर वो ज्यादा उसके ऊपर कोई इस तरह की लेयर ना चढ़ाई जाए तो वो फल जो है वो जल्दी खराब होगा, बजाय कि अगर हम उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं तो जो उसका जो श्वसन क्रिया है वो कम हो जाती है। ये डॉक्टर तो साहब वो वो जो कम उसके होने अंदर के की आर्द्रता है, जो नमी है, उसको बनाए रखता है वो जो ऊपर वैक्स लगा दिया हमने। जी 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 डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, जो भाई जो है बागवानी या फिर जो है फलों के बाग जिन्होंने लगा रखे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। विनोद भाई, ये तो देखिए चर्चा थी अपनी कि जो फल है उनकी तोड़ाई छुटाई और उनकी भाई पैकिंग के ऊपर। और विनोद भाई, जिस तरह की आप कह भी रहे हैं कि अपना काम तो जो है ना सबसे पहले पता अपना क्या रहा है, हाँ वो रहा है भाई आप कृषि से संबंधित कोई प्रश्न पूछना। अच्छा, और किसान वाणी क्रम में हाँ, शुरुआत जो है कार्यक्रम की वही इसी तक कराया आप ज्यादा। हाँ। और इसमें जो है ना आज का जो हमारा कृषि प्रश्न है विनोद भाई, वो इस तरह का है, किसान भाई अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जो बस लिख लो। हाँ और सब हमने जो प्रश्न आपके लिए तैयार कर ले आए हैं ना, वो है कि गन्ने से रस निकलने के बाद जो बच जाना, हाँ। उसने के कवा। अच्छा गन्ने से रस निकलने के बाद जो अवशेष बच जा उसना के कवा है भाई। इसका जवाब आपना हमारा जो फोन नंबर है 94 660 21 336, ये हमारा SMS के माध्यम से SMS के माध्यम से आपने जवाब भेजना है। और भाई जो भाई भेजेंगे उनके नाम आप हम जो है ना देखो कार्यक्रम में लेवा है जरूर जी। और ये तो भाई हमारे प्रश्न की बात रही। और रिसाले भाई अब बात करें राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पे। हाँ, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन रिसाले भाई इसका उद्देश्य है कि जो खेती के उत्पाद है हमारे उसमें संगठित और जो संयुक्त रूप से जो है खेती की जो प्रणाली है उसमें बढ़ावा देना, उत्पादन को अधिक से अधिक लाभकारी और जलवायु के अनुकूल बनाना है। बिल्कुल। और साथ में जो नमी संरक्षण का उपयोग करके जो हमारी सारी जो मिट्टी है उसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। यानी कि विनोद भाई आपने कहना चाह रहे हैं जो भी हमारे मिट्टी है, जल है या भी खेती बाड़ी से संबंधित जो भी बातें है ना, हाँ। उनको हमने जो प्रकृति माना उसके अनुरूप रखना है। बिल्कुल भाई। हाँ, जब भाई उसके अनुसार हमने खेती बाड़ी करनी है, यही है हमारा मुख्य उद्देश्य। तो यही है विनोद भाई की जो कृषि सतत मिशन का। हाँ, खेती बाड़ी के साथ साथ जो हमने प्रकृति के साथ भी संतुलन बना के रखना है। और साथ में जो मिट्टी की जो उर्वरता है उसका भी ध्यान रखना है, सूक्ष्म है जो और मुख्य पोषक तत्व हैं, और साथ में जो मिट्टी का परीक्षण है उस पर आधारित जो है हमने उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल करना है। इनकी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कम होने जाने लग रही है उसको हमने बढ़ाना है। एक बात और है विनोद भाई, इसमें छोटी मोटी सी बात बता दें किसान भाइयों को। देखो भाई, जो भी जलवायु परिस्थिति है ना उसके अनुसार तो अपना खेती करनी है। अभी कौन सी हमने खेती करनी पड़ेगी, जिस तरह के पशुपालन है, मछली पालन है, बागवानी है, दूध से आदि जो खेती बाड़ी है, या भाई डेयरी फार्मिंग का जो काम कर रहे हैं किसान भाई, हाँ। या भाई बागवानी का काम कर रहे हैं जी। हम तो ये कहेंगे किसान भाई एक ही खेती जो मत अपनाओ भाई, उसको जो है ना बदल कर बो। बिल्कुल भाई इस किले में गेहूं बोई, अगले साल उसमें कुछ और बोलो, हाँ। बरसीम बोलो, ढांचा बोलो, बिल्कुल भाई। जो भी है, हरी खाद भी लग जाएगी, दाल वाली कोई फसल ले लो। तो भाई इस तरह जो है ना आपने उनको सुरक्षित करना है। जल भंडारण है, जिस तरह के तालाब हैं या भी ट्यूबवेल है, कुएं है, इन जो प्राकृतिक साधन से भी कई बार देखा, जैसे बारिश है, बाढ़ का पानी आ जाए तो उसको इकट्ठा कर लें। तो इसका उपयोग करके भाई आप अपनी खेती में इसको उपयोग कर सके हैं। बिल्कुल भाई। और रिसाले भाई खेती बाड़ी है या जो डांगर डोर है, हर चीज पे जो है मौसम का बड़ा प्रभाव है। बिल्कुल। तो क्यों ना मौसम की भी जानकारी ले लें साथ हाँ। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा,
न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 65% रही। हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 2.0 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 22 जुलाई तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने, अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए आप अपनी फसलों में छिड़काव का कार्य रोक लें। धन्यवाद। रिसाले भाई, कल किसान वाणी कार्यक्रम में क्या लेकर आ रहे हो आप? विनोद भाई, देखिए रोजा पर जिक्र करा है जी। एक तो पहली बात तो यह कि आप प्रश्न पूछेंगे। हाँ। दूसरी बात ये रहेगी, हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जी। और नई फसल नई उमंग में हम चर्चा करेंगे कि नींबू वर्गीय जो बाग हैं उनकी भाई देखभाल किस तरह करनी है, और साथ साथ में भाई मोटे अनाज के बारे में भी चर्चा करेंगे। और रिसाले भाई, एक और है कि जो किसान भाई हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, खेती बाड़ी से संबंधित है या मौसम की जानकारी है, तो इस तरह की सारी जानकारी किसान भाई ले इसका है किसान कॉल सेंटर के माध्यम से। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551 1551। और रिसाले भाई, क्यों ना भाइयों का मनोरंजन करवा दें? बिल्कुल विनोद भाई, देखिए चर्चा बहुत कर रहे हैं, भाई बैठे होंगे बाट में, सुनवाओ ये लोकगीत।
और रिसाले भाई, आपने जाना हो कि जो हम हर रोज़ जो है देखा है कि जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति हो कम होती जाने लग रही है, और मिट्टी की जो कमज़ोर होती है उपजाऊ शक्ति है उसके कई कारण हैं। कौन कौन से? हाँ, एक तो भाई जो है खेत में जरूरत से ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल। हाँ, ये तो देखो भाई, हम बार बार यही कहें भाई, है ना भाई, प्रकृति का नहीं ज़्यादा झुको। हाँ, या संतुलित खाद का प्रयोग करो। हाँ। और साथ में जो है किसान भाई जो है फसल अवशेष भी जलाओ हैं, जिससे भी जो है खेत की उपजाऊ शक्ति कम हुआ है। बिल्कुल। और जो जैविक खाद है उसका तो नाम मात्र इस्तेमाल करें हैं, और जिससे भाई जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जाने लग रही है। तो ऐसे में जो जैविक खाद का सबसे बढ़िया जो विकल्प है वो है अजोला। बिल्कुल। क्योंकि जो अगर किसान भाई अजोला ने ज़मीन में मिलाओगे तो उससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति लंबे समय तक बनी रहेगी। और अजोला जो है पानी में पनपने वाला, एक तेज़ी तक बढ़ने वाला जो है एक जलीय फर्न है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसका किसान भाइयों ने बहुत फ़ायदा होगा। तो रासायनिक उर्वरकता का प्रयोग तो बचाएं, और जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो हम अजोला के माध्यम से ले सके हैं। और साथ में जो ज़मीन की जो रासायनिक और भौतिक दशा है वो भी सुधरेगी अगर हम अजोला का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में जो जैविक पदार्थ हैं कम समय में आसानी से अपघटित हो जाए हैं, और खास करके जो धान की फसल है उसमें इसकी गुण जो है धान की फसल की गुणवत्ता ने भी वो बढ़ावा है। बिल्कुल। और भाई जो अजोला है उससे मिट्टी में जल धारण करने की ताकत भी बढ़े है, और साथ में जो धान की खेत है उसमें जो जल का वाष्पीकरण हो जाए उसकी दर ने भी वो कम करे, यानी कि जो पानी की बचत है वो भी हमारी ज़्यादा हो जाए है। तो विनोद भाई जी देखिए, अजोला खाद का यानी कि प्रयोग आप ले सको हो और अपनी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ा सको हो। और विनोद भाई थोड़ी सी एक चर्चा और कर दे, भाइयों को जानकारी दे दे बीजामृत के बारे में। बिल्कुल भाई। भाइयों किस तरह तैयार करना है इस खातर देखो किसान भाइयों, बात यह है कि हम बार बार बतावा भी हैं, और आज जो है ना जानकारी में यह है कि आपने बीजामृत बनाने खातर 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना, 5 ग्राम हल्दी का पाउडर लेना है, यानी कि पिसी हुई हल्दी लेनी, 100 ग्राम गुड़ लेना है, और भाई जमीन के किनारे की 1 मुट्ठी आपने मिट्टी लेनी है जी। 15 लीटर आकार का 1 ड्राम लेना है। हाँ। और भाई गाय का 1 किलो गोबर सूती कपड़े में लेकर के उसको बांध देना है, और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक आपने उसको डुबो कर रखना है जी। और 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगो कर आपने रखना है। और भाई अगली सुबह कपड़े में बांध कर गाय के गोबर को भाई पानी में 3-4 तरह अच्छी तरह निचोड़ लेना है, और इसके बाद भाई जो खेत की मिट्टी उसको मिला देना है। और भाई देखो, अगर आप इस बने हुए रसायन का खेती में जो है ना छिड़काव करेंगे तो आपका जो है ना ये एक बढ़िया कीटनाशी का काम करेगा, और जिससे आपकी जो फसल है भाई स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल भाई। और किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद और रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।